Hello everyone. Since last I think 2-3 lectures we are talking about different subject matters of SEM 2 economics, and last time we have started first chapter of third unit, that was money and banking, right? And in that chapter we have taken into consideration many primary things and history of money. That is, if there is no money, you know, uh, how the transaction take place and what was the situation in barter system, how many types of money were there in the history of economy, right? And what are the different concepts of money, right? All this which is at present on the screen we are discuss, right? Uske baad, after different meanings of money, we are taken into consideration mainly three major section of functions of money, that is primary functions, right, which are mainly two: medium of exchange and measure of value. Then secondary function of money, right, which are mainly three, that is store of value, standard of defer payment and transfer of value. Then the final advanced level of functions, right, that was contingent functions of money, I can say, are mainly five, right? That is distribution of national income, measurement of national income, equalization of marginal utility and marginal productivity, basis of credit system, means bank money depends on legal tender money, that part, and finally money is a perfect liquidity assets. यहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है. टुडे विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. मतलब मनी सप्लाई है क्या और उसमें क्या क्या आता है, राइट? तो एज आई टोल्ड यू, देर आर मेजर 4 थॉट्स ऑफ schools, right? One is known as conventional school of thoughts, second one is Chicago school of thoughts, third one is Garley and Shaw, and fourth one is credit money. Okay, so every understanding has a different aspect or components of money supply, right, as per their own understanding. So the money supply refers to the total sum of money available in the money available to the public in the economy at a particular time. अगर कोई simplest पूछे हमें कि मनी सप्लाई मतलब क्या, तो टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी मनी की जो इकोनॉमी में है, दैट इज़ विथ ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट? तो उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई. मनी सप्लाई ऑलवेज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, राइट? जो लोगों के पास पैसे हैं ऑन हैंड, राइट, दैट क्वांटिटी, right, is money supply. And as I just now told you that there are 4 concepts as per conventional approach, that is traditional aspect, right? Money supply means cash plus demand deposits. Okay, मतलब जितना भी करेंसी नोट्स, राइट, कॉइन्स है मार्केट में, इकोनॉमी में, प्लस बैंकों के पास हमारे जो सरप्लस मनी हम डिपॉजिट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, राइट? वो मनी सप्लाई है, राइट? वो एज पर दी कन्वेंशनल अप्रोच. सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है. तो कन्वेंशनल अप्रोच ये कहता है कि मनी सप्लाई इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ टोटल कैश एंड डिमांड डिपॉजिट. फिर आता है शिकागो अप्रोच. उनका कहना ये है कि मनी सप्लाई इज़ दी कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट. मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उन लोगों ने टाइम डिपॉजिट को कंसिडर नहीं किया. टाइम डिपॉजिट मीन्स एफडीज, फिक्स डिपॉजिट, राइट, विच इज़ नॉर्मली रिमेन लॉक्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द बैंक, बराबर? तो दैट इज़ शिकागो के अप्रोच के हिसाब से मनी सप्लाई इज इक्वल टू कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट. ये तीनों को मिला के जो होता है वो मनी सप्लाई है, राइट? उसके बाद जो है गर्ले एंड शो का अप्रोच, वो थोड़ा लंबा है और काफ़ी कुछ मॉडर्न मैटर उन्होंने कंसिडर किए हैं और इंक्लूड किए हैं. दैट इज़ एक्चुअली
मनी सप्लाई इज इक्वल टू कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, मतलब ट्रेडिशनल और शिकागो स्कूल ने जो कहा वो तो है ही, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दैट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड एवरीथिंग। जैसे हम लोग अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह बाय करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की फुल सिक्योरिटी होती है, मैनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स फुल सिक्योरिटी है, राइट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मतलब बैंकिंग को छोड़ के भी काफ़ी मार्केट में, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट आप देखो तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, जैसे कि यूटीआई है, नाबार्ड है, आईआईएफएल है, राइट। तो इन सब के पास भी अगर पैसे पड़े हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट की लाइबिलिटीज़ जो है उसको भी हमें ऐड करना चाहिए मनी सप्लाई में। और एक और लास्ट वन भी उन्होंने ऐड किया है, दैट इज़ दी फंक्शंस ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब खाली बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट रहता है ऐसा नहीं है, पर टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास भी होता है, राइट। तो उन्होंने किया है टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। सो इन गर्ले एंड शो देर आर 5 कॉन्सेप्ट, मतलब ये 5 को मिला के जो बनता है वो मनी सप्लाई है। उसके बाद का जो है वो क्रेडिट अप्रोच है, और क्रेडिट अप्रोच एक्चुअली जो है वो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, टॉक्स अबाउट ऑल, आई कैन से मनी, बैंक मनी, राइट। एंड यू ऑल नो बैंक मनी डिपेंड्स ऑन लीगल टेंडर मनी, क्योंकि अगर पैसे बैंक तब क्रेडिट दे सकती है जब हमारे जैसे लोग डिपॉजिट करें पैसे। तो क्रेडिट अप्रोच कहता है देयर आर 2 ब्रॉड ग्रुप्स of financial experts, right, have represent this approach, and according to them credit instruments are very close substitute for money, right। मतलब अगर लोन लेते हो आप तो वो दैट इज़ क्लोज सब्सिट्यूट टू मनी, क्योंकि जो काम आपका पैसे पॉकेट में होने से होता है वही लोन से भी हो जाता है। they have of a view that money supply and velocity of money have लिटल सिग्निफिकेंस, राइट। उनको लगता है कि क्रेडिट मनी जितना इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, एंड अ क्रेडिट कार्ड कैन अनेबल द होल्डर टू बाई एनीथिंग, राइट। हमें पता है आज के ज़माने में पॉकेट में पैसे ना हो पर क्रेडिट कार्ड हो, काम हो जाता है, राइट। तो उनके हिसाब से क्रेडिट अप्रोच जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट अप्रोच, उनके हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एंड एज पर दिस अप्रोच मनी सप्लाई इज़ नॉट द मेन लीवर of monetary actions. Funds for the liquidity can be managed by borrowing, and borrowing is depends on borrowing power of the community, right, as a whole। मतलब आप कितना borrow कर सकते हो depends on your paying power, repaying capacity, right। So this approach has rejected all the traditional understanding of money। आगे जो भी हमने बोला उनके साथ ये क्रेडिट अप्रोच जो है मॉडर्न वाला वो एग्री नहीं करता, क्योंकि वो ये बिलीव करता है कि मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैंक मनी है, क्योंकि आजकल सब कुछ लोन पर, ईएमआई पर, क्रेडिट डेबिट कार्ड पर होता है, पैसे ना होने पर भी पैसे का सारा काम हो जाता है, राइट। तो अगर ये और आगे के सारे चारों को कंसिडर करें तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू लीगल टेंडर मनी प्लस बैंक मनी, ओके। तो इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या। तो M1 का मतलब है C प्लस DD प्लस OD, मतलब आगे जो हमने समझाया वही सब है, खाली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा है। C मीन्स करेंसी, DD means demand deposit and OD means other deposits, right। करेंसी आपको पता है, that is coins and currency notes, right। करेंसी में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है जो मैंने यहाँ लिखी है। एक है नोट्स इन सर्कुलेशन, मतलब पूरी इकोनॉमी में कितनी पेपर करेंसी सर्कुलेट हो रही है, राइट, करेंसी नोट्स। कॉइन्स इन अ सर्कुलेशन, दैट इज़ दिस 2 आर एक्चुअली लीगल टेंडर मनी, राइट। एंड कैश रिजर्व ऑन हैंड विथ बैंक्स, क्योंकि बैंकों के पास लेंडिंग करने के लिए पैसे चाहिए और आरबीआई के रूल के हिसाब से कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, राइट।
तो वो जो रिज़र्व ऑन हैंड है ये एक्चुअली कैश है, राइट। तो ये तीनों मिला के सी बनता है, दैट इज़ करेंसी। उसके बाद जो है डीडी, उसका मतलब है डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक इन द कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, बराबर। जो बैंकों के पास डिपॉजिट है पब्लिक का वो। और एक अदर है ओडी, दैट इज़ अदर डिपॉजिट। नाउ अदर डिपॉजिट में 3-4 चीज़ें और ऐड होती है, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ इंस्टीट्यूट्स लाइक यूटीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, नाबार्ड एट्सेट्रा। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट तो फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट की भी होती है, जिनके पास हमारे करेंसी रहते हैं। तभी तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या ट्रैवल टूरिज़म में जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज होती है। तो फॉरेन बैंक के पास अपनी करेंसी हमेशा ही रहती है और इंडिया के पास भी सारी फॉरेन करेंसीज रहती है। तो दिस इज़ अदर डिपॉजिट। और एक अदर डिपॉजिट में है डिमांड डिपॉजिट ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, मतलब उनके पास भी सभी कंट्रीज़ की करेंसीज होती है। तो उन लोगों के पास हमारे रुपीज़ कितने हैं, दैट इज़ अदर डिपॉजिट, राइट। फॉरेन बैंक्स के पास हमारे कितने लिक्विडिटी है, कैश है, दैट इज़ अदर डिपॉजिट। और ये सारे जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास भी कितने पैसे ऑन हैंड पड़े हैं, दैट इज़ अदर डिपॉजिट, राइट। तो M1 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, जो मैंने बोला ये 3 करेंसी, नोट्स, कॉइन्स एंड कैश रिजर्व। DD मतलब सभी बैंकों के पास, कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल बैंक के पास जो है हमारा डिपॉजिट वो। एंड OD अदर डिपॉजिट मतलब ये 3 चीज़ें, ओके, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बराबर। उसके बाद आता है M2। तो M2 का मतलब है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, राइट। जैसे मैंने आगे भी गर्ले एंड शो में दिखाया था कि उन्होंने भी पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट को कंसिडर किया था। तो वो लेना ज़रूरी है क्योंकि वो भी हमारी करेंसी है, वो भी सर्कुलेट होती है, उससे भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, ओके। concept of M3 is quite broad as well as popular in India। कोई अगर बोले कि ये 4 जो कॉन्सेप्ट है M1, M2, M3, M4, उसमें सबसे पॉपुलर इंडिया में कौन सा है, तो हमारे यहाँ वी आर यूजिंग मच M3। तो वो क्या है, M3 मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब जो भी फिक्स डिपॉजिट है ऑल कॉमर्शियल बैंक एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स के पास, वो M1 में ऐड करने से मिलेगा M3, राइट। सो M3 को हम ये भी बोल सकते हैं C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ ऑल बैंक्स, राइट। और जो M4 है वो दैट इज़ एक्चुअली इंक्लूजन ऑफ ऑल, आई कैन से दैट इज़, देखिए खाली M4 का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जिसमें M1 की जगह पर M3 लिया गया है। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि M2 करोगे तो M1 प्लस समथिंग, फिर M3 करोगे तो M2 प्लस समथिंग, ऐसा नहीं है, राइट। देखिए M2 में भी M1 है, M3 में भी M1 है, खाली M4 जो है उसमें सीधे ही M3 लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि M1 में जो है वो तो है ही, प्लस टाइम डिपॉजिट जो M3 का कंपोनेंट है वो भी है, राइट। और ऊपर से टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सेविंग्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स है, सबका टोटल डिपॉजिट इसमें ऐड हो गया है। खाली उसमें एक चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, दैट इज़ NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, विच इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब कोई पूछे कि मनी सप्लाई में आता क्या है, तो M1, M2, M3, M4 एक इस तरह से समझा सकते हो। दूसरा जो है 4 स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग बताते हैं, उस तरह से भी आप समझा सकते हो। और सिंपलेस्ट मीनिंग में लीगल टेंडर मनी प्लस बैंक मनी, ऐसा भी बता सकते हो, राइट।
So this is actually money supply. After money supply you have another 10 marks question, and that is credit creation of process, right? Credit creation process of commercial bank. मतलब सारी कॉमर्शियल बैंक जो है वो बैंक मनी जनरेट कैसे करती है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जो अप्रोच है क्रेडिट अप्रोच वो मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमको लोन लेना, ज़्यादा खर्च करना, इनकम से ईएमआई से पे करना, ये सब की आदत पड़ गई है, राइट। तो अभी जो ट्रेंड में जो है वो क्रेडिट अप्रोच है, इसलिए क्रेडिट क्रिएशन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्रेडिट क्रिएशन को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने बैंक है, कितने कस्टमर है और उन सब के बीच में कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मैंने यहाँ बुक में बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है क्या होता है, कैसे होता है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो देयर आर 3 बैंक्स, राइट, एंड 3 कस्टमर्स। ओके, बैंक्स जो है वो है XYZ और जो 3 कस्टमर है वो ABC है। अभी मान लो कि कोई एक बैंक है जिसके पास 10,000 का डिपॉजिट है। जो डिपॉजिट आया कहाँ से? पब्लिक के पास जो सरप्लस होता है वो सरप्लस पब्लिक नॉर्मली बैंक में डिपॉजिट करती है, राइट। तो मान लीजिए इन अ इनिशियल स्टेज द प्राइमरी डिपॉजिट विथ बैंक X, राइट, इज़ 10,000 रुपीज़। नाउ ये 10,000 का बैंक क्या करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अ बैंक हु want to lend money in the market has to follow the rules of RBI, right? आपको पता है। और there is a norm of RBI that every commercial bank has to keep certain amount of this deposit in a reserve form. मतलब बैंक कैन नॉट यूज़ दैट रिजर्व अमाउंट फॉर लैंडिंग पर्पस, राइट। मतलब 10,000 बैंक के पास है तो वो पूरा 10,000 लोन किसी को नहीं दे सकता, राइट। उसमें से कुछ RBI के रूल के हिसाब से रिज़र्व रखना पड़ेगा। मान लो ये जो रिज़र्व है वो 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक X की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो 9,000 है, राइट, इंस्टेड ऑफ 10,000, क्योंकि 1,000 उसको रिज़र्व रखना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ बैंक X हैज़ टू कीप ₹1,000 इन अ रिज़र्व फॉर्म। अभी अगर ये 1,000 रिजर्व में रहा, इसका मतलब लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक X विल बिकम 9,000, राइट, क्योंकि 1,000 उसने एक बाजू रख दिया। अब ये 9,000 वो पब्लिक को दे सकते हैं। मान लो कोई कस्टमर A जो है वो बैंक X के पास आता है लोन लेने के लिए, तो मैक्सिमम बैंक X कैन गिव 9,000। मान लो 9,000 बैंक X ने कस्टमर A को दे दिए, तो कस्टमर A को हो सकता है कुछ भी ज़रूरत हो, उसको बिज़नेस शुरू करना है या उसको कुछ काम है पैसे का, राइट। तो अगर बिज़नेस शुरू करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट। पहले कोई लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पर बिज़नेस हो सके, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी प्रोसेस है। तो मान लो वहाँ तक ये करते करते वो अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखता है। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं से कोई भी बैंक से पैसे मिलते हैं तो हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो मान लो ये कंज्यूमर A जो है उसने बैंक X से 9,000 रुपीज़ लिए और वो 9,000 रुपीज़ वो जाके अपने बैंक में रखता है। लेट अस से दैट बैंक इज़ बैंक Y, राइट। तो Y के पास जाके कस्टमर A जो है वो 9,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है। अभी बैंक Y के पास 9,000 आए हैं, इसका मतलब RBI के रूल के हिसाब से Y को भी 10% रिज़र्व रखने पड़ेंगे। तो 9,000 के 10% मतलब 900 रुपीज़, राइट। तो 900 रुपीज़ वो रिज़र्व रखेंगे, तो 9,000 में से 900 निकल जाएंगे, तो कितने बचे? तो 8,100 रुपीज़, राइट। तो 8,100 रुपीज़ जो है दैट इज़ द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक Y। वो Y बैंक किसी कस्टमर B को देगी, राइट।
फिर से बी जो है वो पैसे किसी और बैंक में, सपोज जेड बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो जेड बैंक में को अगेन 10% रिजर्व रखना पड़ेगा और बाकी का वो लोन दे सकते हैं, राइट। तो अगर 8,100 बैंक जेड के पास जाता है तो उसको भी 10% रखना पड़ेगा। अभी वो 10% रखेंगे, इसका मतलब 810 रुपीज़ जाएगा रिजर्व में, तो लैंडिंग कैपेसिटी बैंक जेड की हो जाएगी 7,290 रुपीज़, राइट। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ तो हमने खाली बहुत छोटा डेटा लिया है 10,000, खाली 3 बैंक है और 3 कस्टमर है, तब भी इतना लंबा हो रहा है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा अगर मैं आपको पूछूं तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, राइट। तो ऐसे बैंक कस्टमर ये पैसे मूव होते रहेंगे, ओके। तो अगर कोई पूछे कि टोटल ये पूरी प्रोसेस होने के बाद टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, तो आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क के तौर पर घर पे करनी है। आप करते जाओगे 10% रिजर्व करते जाओगे, बाकी का लैंड होगा, तो ज़ीरो तक ये प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे आपको मिलेगा कि सबसे पहले लैंडिंग शुरू हुआ 9,000 से, क्योंकि 10,000 डिपॉजिट था, उसमें 1,000 तो रिजर्व हो गया, मतलब क्रेडिट मनी जो है वो 9,000 से शुरू हुआ। उसके बाद 8,100 रुपीज़, उसके बाद 7,290 रुपीज़। उसके बाद अगर 10,000 रखने हैं तो 729 रखने पड़ेंगे रुपीज़ रिजर्व। तो ये 7,290 में से 729 बाद माइनस करने से आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो नेक्स्ट क्रेडिट कैपेसिटी होगी बैंक की। तो ये ऐसे करते जाओगे तो अल्टीमेटली आपको लास्ट मोमेंट पे 90,000 आंसर आएगा, राइट। तो इतनी लंबी प्रोसेस तो नहीं कर सकते, इसलिए इकोनॉमिक्स में एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन ऐसा है कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू सरप्लस डिपॉजिट सरप्लस डिपॉजिट अपॉन कैश रिजर्व रेशियो CRR। मतलब सरप्लस डिपॉजिट का मतलब क्या है, बैंक को नॉर्म्स के हिसाब से जो रखना पड़ेगा वो छोड़ के जितना बचा, जैसे 10,000 था उसके पास पर वो सरप्लस नहीं था, उसमें से 10,000 तो वो यूज़ ही नहीं कर सकता, तो सरप्लस वॉज 9,000। तो RBI नॉर्म्स के हिसाब से आफ्टर CRR जो सरप्लस होगा वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय CRR, राइट। तो हमारे एग्जाम्पल में 9,000 है सरप्लस डिपॉजिट और CRR जो है 10% है। नाउ 10% मतलब 1/10 और 10/100 बराबर। तो इससे यहाँ मैं अगर 10/100 करूँ तो मुझे मिलेगा 1/10। अभी 1/10 मतलब वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, नीचे है इसलिए, तो 9,000 इंटू 10, राइट, ऐसे मिलेगा। देखिए 9,000 अपॉन 1/10, तो ये ऊपर आ जाएगा, होगा 9,000 इंटू 10, तो आंसर मिलेगा 90,000। तो ये हो गया आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन, राइट। तो 10 मार्क की एग्ज़ाम में हम पूछते हैं क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल एंड इक्वेशन, राइट। तो ये ऐसे क्रेडिट क्रिएशन होता है एवरी इकोनॉमी में, पर उसके थोड़े प्रॉब्लम ये है, लिमिटेशंस, कि एक तो विलिंगनेस ऑफ बायर्स, मतलब ये क्रेडिट क्रिएशन का फ़ायदा तब है जब पीपल आर रेडी टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक। अगर किसी को क्रेडिट चाहिए ही नहीं, किसी को बैंक पसंद ही नहीं है, प्रोसेस पसंद नहीं है, तो ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिस अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, राइट, तो लेंडिंग अमाउंट ये जो है क्रेडिट क्रिएशन अमाउंट वो कम हो जाएगा। तो CRR एंड टोटल क्रेडिट क्रिएशन विल बी इन्वर्सली रिलेटेड, राइट। तीसरा जो है वो ऐसा है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक, राइट। मतलब हम लोग बैंक का कितना यूज़ करते हैं। अगर हम डिपॉजिट अपनी बैंक में रखे ही नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन विल नॉट वर्क, राइट।
Then you know the even process of credit creation is very very tedious, very long, very time consuming, right? तो इसलिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल आर नॉट प्रीफरिंग दिस बैंक लोन, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस हैं, धक्का खाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत कुछ यू नो, और कभी कभी तो अंडर टेबल एक्टिविटी, बहुत कुछ करप्शन, ये सब होता है। तो इसलिए यू नो पीपल आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ गेटिंग लोन समटाइम्स, एस्पेशली इलिटरेट पीपल, उनको ये बोरिंग लगता है। एग्रीकल्चर में गांव में देखो तो आज भी फार्मर्स आर टेकिंग लोन फ्रॉम यू नो लैंडलॉर्ड्स एंड यू नो अदर फ्रेंड्स एंड यू नो श्रॉफ एंड ऑल, राइट? So this is what. And lastly, TCC, total credit creation, depends on demand for money or public wishes to hold cash, right? क्योंकि अगर if we hold more cash on hand, इसका मतलब है कि deposit in the bank will decrease. तो ये आप पर है, कि आप पर मतलब हम सब पर है, चॉइस पर है लोगों की, कि लोगों को पैसे हाथ में रखना अच्छा लगता है कि बैंक में डिपॉजिट करना अच्छा लगता है, राइट? अगर वो बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन विल बिकम फास्ट, और अगर हाथ में ज़्यादा रखेंगे तो एक क्रेडिट क्रिएशन विल बिकम स्लो। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में 3 क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं। एक है 10 मार्क का क्वेश्चन, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मनी, जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। उसके बाद आज लेक्चर में जो पढ़ाया वो 2 आंसर है। एक है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें आज मैंने जो कुछ बताया वो मनी सप्लाई में आप लिख सकते हो। 7 मार्क के क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं, कभी कभी 3-4 मार्क में शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, राइट? और ये लास्ट वाला जो है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस विथ ऑल इक्वेशन, एग्जाम्पल एंड लिमिटेशंस, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, हमने तीनों बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है, राइट? और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट बिजनेस साइकिल, राइट? और जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 15 से हम बंद करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, क्योंकि 18 मार्च से आपकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो टेक्निकली हम लेक्चर कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग वहाँ बिज़ी हो। अगर हम लोग यहाँ पढ़ा देंगे तो आपको लॉस होगा, इसलिए 18 मार्च से आपकी टेस्ट है और 3 दिन हम आपको रीडिंग वैकेशन दे रहे हैं, दैट इज़ 15, 16 एंड 17, विच इज़ बैडली नीडेड, आई फील दैट, राइट? तो 14 तक हमारे क्लासेस चलेंगे। 15, 16, 17 आपको रीडिंग वैकेशन है, 18 से लेके आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी, और जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है नेक्स्ट डे फिर से हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ओके, सो most probably in the next lecture we'll discuss business cycle, because you know थर्सडे का जो लेक्चर है वो एक नई मैडम इकोनॉमिक्स की है, उनका है, तो फ्राइडे और सैटरडे का जो लेक्चर है वो मेरा है। ये आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो एक्चुअली सैटरडे बहुत बिजी थी मैं, और इसलिए वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, तो ये वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूँ, राइट? तो मेरा अभी नेक्स्ट जो डेट आएंगे मेरे लेक्चर्स, राइट, दैट इज़ फ्राइडे एंड सैटरडे, तो 2 लेक्चर में हमारा ये बिजनेस साइकिल मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद नया चैप्टर हम आफ्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टैंड, राइट? सो इन अ नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss business cycle. Till then, bye bye and have a nice